আপোনালোক সকলোকে গুড আফটাৰনুন। মই লীনা হাজৰিকা, শ্ৰী অৰবিন্দ ছ'চাইটিৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ। সকলোকে এবাৰ মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিম, যিসকল আমাৰ ৰিচ'ৰ্চ পাৰ্চন বা আপোনাৰ সহকৰ্মীসকল এতিয়াও জইন হোৱা নাই, তেওঁলোকে যাতে জইন হ'ব পাৰে, এবাৰ তেওঁলোককো আপোনাৰ ফালৰ পৰা এটা মেছেজ দি দিয়ক বা এবাৰ কৈ দিয়ক, যাতে আমি নিৰ্ধাৰিত সময়ত আজিৰ যিটো আলোচনা চক্ৰ আছে, সেইটো সময়মতে আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ। যিহেতু আপোনালোক সকলো বহুত ব্যস্ত হৈ থাকে, আমাৰ ডিপিঅ ছাৰ সকলো ব্যস্ত থাকিব। ত' বেছি সময়তকে দেৰি হৈ গ'লে সকলোৰে বাবে অসুবিধা হ'ব। ত' 12 বাজিবলৈ এতিয়াও আৰু 2 মিনিট আছে। সকলোকে এবাৰ ময়ো গ্ৰুপত ৰিমাইণ্ড কৰাইছোঁ অলৰেডি। আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা এবাৰ দি দিয়ক। पूजा मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ, एक्चुअली अभी 12 बज गया है, तो थोड़ा 5 मिनट्स और ओके वेट कर लेते हैं। ओके ओके ठीक है। ठीक है। আপোনালোকে মোৰ মাতটো শুনিছেনে সকলোৱে? শুনিছে ন? হয়। আকৌ এবাৰ মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ। আৰু মোৰ নাম শ্ৰী লীনা হাজৰিকা। হয়, মই শ্ৰী অৰবিন্দ ছ'চাইটিৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ, আৰু আপোনালোক সকলোকে আজিৰ এই ডিজিটেল যিখন আলোচনা চক্ৰ আছে, CRE অৰিয়েণ্টেশ্যন হিচাপে কোৱা যায়, তাৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে বহুমূলীয়া সময় দি আমাক উপকৃত কৰাৰ বাবে। বেছি সময় আপোনালোকৰ পৰা নলওঁ, এবাৰ সকলো আহি যোৱাৰ পিছতে আমি আমাৰ যি আলোচনাৰ বিষয় আছে, আমি আৰম্ভ কৰি দিম। আপোনালোকে সকলোখিনি ভালকে শুনিব, আৰু কিবা যদি তাৰ মাজত সুধিবলগীয়া থাকে, ডাউট থাকে, তাৰ কাৰণে ছেশ্যনৰ পিছতো আপোনালোকে সুধিব পাৰিব। আৰু তাৰ বাবে আমি এটা গ্ৰুপো বনাইছোঁ, হোৱাটছএপ গ্ৰুপ, য'ত প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ ডিপিঅ ছাৰ বাইদেউসকল আছে তাতে, আৰু তাৰ লিংক অলৰেডি আপোনালোকক হয়তো ইতিমধ্যে দিছে, বহুতে জইনো কৰিছে। আৰু যিসকল এতিয়াও জইন হোৱা নাই, আপোনালোকে জইন হৈ ল'ব। কাৰণ এইটো যিহেতু এদিনীয়া পৰিক্ৰমা নহয়, আপোনালোকৰ লগত আমাৰ এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা থাকিব। কিবা যদি ডাউট থাকে বা যিকোনো ধৰণৰ সহায়, সুবিধা, অসুবিধা, ফিডবেক, ৰিভিউ আপোনালোকে তেতিয়া দিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে সেই গ্ৰুপ কেইটাত জইন হৈ ল'ব। এতিয়া আমাৰ যিহেতু আজি 6খন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, এতিয়াও যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহিবলৈ বাকী আছে। এবাৰ সকলো জইন হৈ লওক, তাৰপিছত আমি আমাৰ আলোচনাখন ষ্টাৰ্ট কৰিম। কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ ডিপিঅ মেম অলৰেডি জইন কৰিছে, সুৰঞ্জনা মেম। মেম, গুড ইভিনিং, গুড আফটাৰনুন।
থেংক ইউ আপুনি Good জইন হোৱাৰ afternoon. বাবে। হয় মেম, থেংক ইউ ছ' মাচ ইমান ব্যস্ত চিডিউলৰ মাজতো আপুনি জইন হোৱাৰ বাবে। আমি আৰু অলপ সময় ৱেইট কৰিম। বাকী আমাৰ যিসকল ছাৰ বাইদেউ আছে, যিহেতু 7খন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে আমাৰ মাজত, বাক্সা, বিশ্বনাথ, চিৰাং, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু কামৰূপ ৰুৰেল। তো তেওঁলোক সকলোৰে প্ৰতিনিধিসকল যিহেতু ব্যস্ত থাকে, তো তেওঁলোক এবাৰ জইন হৈ লওক। আমি তাৰ পিছত 12:03 হৈছে এতিয়া, আৰু 2-3 মিনিটৰ ভিতৰত আমি তেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আৰু। বুজি পাইছে? মোৰ আগতে খুব কানেকশ্যন আছিল। মোৰ এনেকুৱা কানেকশ্যন হৈ গৈছিল, এই নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট আছে নহয়, মই মানে এতিয়া কৈছো কৈ সেইটো দেতো মই এটা চাইণ্টিষ্টক পাই গেলা তাত কিবা কাৰণত যাওঁতে মই বাহিৰত এই অসমীয়াটো এটা এটা কথা পাতি আপোনালোকৰ মতে আমি ছেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁনে আৰু অকণ সময় ৰৈ লওঁ? কোনোবা ছাৰ বাইদেউ এবাৰ জনাব নেকি? যিহেতু আমাৰ মাজত এতিয়াও যথেষ্ট সংখ্যক লোক মোৰ মতে আহিবলৈ বাকী আছে। ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ নে অলপ সময় ৱেইট কৰোঁ? এবাৰ আপোনালোক কোনোবা এজনে যদি আনমিউট কৰি পেলাই কয়। বহুত বাকী আছে যদি অলপ ৰৈ দিয়ক। ঠিক আছে। তো মেছেজ দি আছো, আপোনালোকেও যদি কোনোবা আপোনালোকৰ কলিগ এতিয়াও অহা নাই, এবাৰ মেছেজ দি দিব। আমি আৰু হয় 2-3 মিনিটৰ ভিতৰত তেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিম আৰু। হয় হয় অলপ ভাল কম সংখ্যক হৈছে। হয়, ঠিক আছে।
আমি লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট কৰো যিহেতু সময় গৈ আছে। তো যিসকল বাকী থাকে আহিবলগীয়া তেওঁলোক আহিব আৰু ইয়াত আমি ৰেকৰ্ডিঙো ৰাখাৰ ব্যৱস্থা কৰিম যাতে আমাৰ যিসকলে আজি এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত জইন হ'ব পৰা নাই তেওঁলোকে যাতে যিখিনি কথা বা যিখিনি বিষয় আমি আলোচনা কৰিলো সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে শুনিব পাৰে। গতিকে আমি আৰু বেছি পলম নকৰো। আপোনালোকে কি কয়? ষ্টাৰ্ট কৰি দিও তেতিয়াহ'লে। কৰক বাইদেউ। হয় হয় ঠিক আছে। থেংক ইউ ছ' মাচ আপোনালোকৰ ৰেছপন্সৰ কাৰণে। থেংক ইউ। পোনপ্ৰথমে নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা। মই আকৌ এবাৰ মোৰ নামটো কৈছো, মই লীনা, শ্ৰী অৰবিন্দ ছ'চাইটিৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে মই আপোনালোকক আজিৰ CRE অৰিয়েণ্টেশ্যনৰ এই ডিজিটেল প্লেটফৰ্মলৈ আপোনালোক সকলোকে অভিনন্দন জনালো। আৰু আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ বহুমূলীয়া সময় দি পেলাই আমাৰ লগত একত্ৰিত হোৱাৰ কাৰণে বিশেষ ধন্যবাদ। আৰু আজি আমাৰ এই যি আলোচনা চক্ৰ আছে এই আলোচনা চক্ৰখনত পূজা দাস মেম আমাৰ দিল্লী হেড অফিচৰ পৰা তেওঁ আজিৰ এই সেশনটো ল'ব হিন্দীত। গতিকে আপোনালোকৰ যদি কিবা সেশনৰ মাজত কিবা কোৱেৰিজ থাকে বা কিবা যদি আপোনালোকে সুধিবলগীয়া থাকে আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি যাব। সেশনৰ পিছত আপোনালোকে সেইখিনি বস্তু এবাৰ ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু তাৰ লগতে আমি যিহেতু সকলোৰে লগত কানেক্ট হৈ থাকিব লাগিব, যিহেতু এটা দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা, আমি এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰিছো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ, যেনেকে আজি আমাৰ মাজত আছে বাক্সা, বিশ্বনাথ, চিৰাং, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু কামৰূপ ৰুৰেল। এই গোটেইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্ট মিলি আমি এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰিছো। তাত আপোনালোকৰ যিকোনো ধৰণৰ ফিডবেক, যিকোনো ধৰণৰ ৰিভিউ, কুৱেশ্যন, ডাউট আপোনালোকে আমাক তাত দিব পাৰে বা যোগাযোগ কৰিব পাৰে। সেশনৰ পিছত যিসকল এতিয়ালৈকে জইন হোৱা নাই আপোনালোক জইন হৈ ল'ব। আৰু লগতে যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকিলেও আপোনালোকে সেশনৰ পিছত এবাৰ সুধি ল'ব। তো মই আৰু বেছি দেৰি নকৰি পেলাই আপোনালোক সকলোকে আজিৰ সেশন আমাৰ ল'ব পূজা দাস মেমে, তেখেতক মই এবাৰ হেণ্ড অভাৰ কৰিম। আৰু আজি হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে যে আজি যিটো আলোচনা চক্ৰ তাত আপোনালোক সকলো অলৰেডি বহুতো জানি হেৰি কৰি পেলাই, গতিকে মেমে খুব ধুনীয়াকে আপোনালোকক বুজাই দিব। पूजा मैम, तो आप पूजा मैम आप सेशन हैंड ओवर कर लीजिए। जी थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू थैंक सो मच लीना जी, थैंक यू सो मच मैम। एंड मैं आप सभी रिस्पेक्टेड आरसीआई प्रोफेशनल्स का एंड जितने भी ऑफिसर्स एंड हमारे बीच में जॉइन एजुकेटर्स, आप सभी का आज के इस सेशन में मैं एक वार्म वेलकम करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपना वैल्यूबल टाइम निकाल कर आज के सेशन को ज्वाइन किया। तो जैसा कि मैम ने कहा, आज हम सीआरई पे डिस्कशन करेंगे कि आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा प्रोजेक्ट इंक्लूजन में अब सीआरई प्रोग्राम भी लॉन्च हो गया है। एंड आप लोगों के मन में भी काफ़ी डाउट्स होंगे कि ये किस तरीके का प्रोग्राम है, कैसे होगा, कैसे मिलेगा पॉइंट्स, और क्या चार्जेस है, फ्री है, क्या तरीका होगा। सब कुछ आज के सेशन में आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। एंड आई होप एंड ऑफ द सेशन आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो जाए। स्टिल आपका कोई डाउट रहता है, डोंट वरी, आप लोग सेशन के एंड में पूछ सकते हैं, आपको पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा एंड आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सीआरई प्रोग्राम प्रोजेक्ट इंक्लूजन का एक पार्ट है। एंड प्रोजेक्ट इंक्लूजन प्रोग्राम है श्री अरबिंदो सोसाइटी का। ये हमारा सोसाइटी श्री अरबिंदो सोसाइटी एक इंटरनेशनल एनजीओ है जिसके 300 प्लस सेंटर्स एंड ब्रांचेस है अक्रॉस 7 कंट्रीज। तो हमें नेशनल इम्पोर्टेंस भी मिल चुका है और हम डिफरेंट सेक्टर्स पे काम करते हैं, बट एजुकेशन हमारा सबसे मेन सेक्टर है। एंड इसी के अंडर आता है प्रोजेक्ट इंक्लूजन। अब प्रोजेक्ट इंक्लूजन क्या है और कैसे सीआरई प्रोग्राम इसमें क्या कर रहा है और सीआरई का क्या प्रोसेस होगा, इन सब पर बात करने से पहले मैं कुछ स्टैटिस्टिक आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगी जो कि करंट सिचुएशन को दर्शाती है। इंडिया में सेंसस हुआ था 2011 में, भारत में जनगणना हुई थी 2011 में। तब ये पाया गया कि 2.68 करोड़ पर्सन विद डिसेबिलिटीज है इन इंडिया। और अगर हम बच्चों की बात करें, अंडर 19 ईयर्स तक की बच्चों की अगर बात की जाए तो 78 लाख चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है इन इंडिया। यूनेस्को की रिपोर्ट आई थी 2019 में, उसमें ये पाया गया कि अंडर 19 ईयर्स तक की अगर बच्चों की बात की जाए तो 78 लाख चिल्ड्रंस है जिनको डिसेबिलिटीज है। अब
इस काउंट से आपको पता चल गया होगा कि कितना बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने है, क्योंकि इनमें से काफी बच्चों को तो एजुकेशन ही नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो किसी भी प्रकार के एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल से ही जुड़े हुए नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार का एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। एंड ये तो तब की बात है जब पीडब्ल्यूडी एक्ट ने सिर्फ 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई किया था। अब ये काउंट बढ़कर 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हो चुकी है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कंसर्न एंड चैलेंज है हमारे सामने। इस चैलेंज एंड कंसर्न का क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन तभी होगा जब हम सब मिलजुल कर काम करेंगे एक इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव सेटअप पर, जहाँ पे आरसीए प्रोफेशनल्स भी अपने जो स्किल्स है वो डेवलप करते रहे, अपस्किलिंग करें एंड रेगुलर टीचर्स भी सेंसिटाइज हो, एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बने, इंक्लूसिव एजुकेशन मिले, तभी पॉसिबल है। एंड इसी पे काम करता है प्रोजेक्ट इंक्लूजन। अच्छा, कुछ नॉर्म्स एंड फ्रेमवर्क्स हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन पर हमारे गवर्नमेंट, हमारे सरकार में, हमारे भारत में है। इवन आप लोगों को भी ये पता होगा, जैसे कि राइट टू एजुकेशन। हम किसी भी बच्चे को एजुकेशन से डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, ये उनका राइट है, वो उनका अधिकार है। फिर यूएनसीआरपीटी के द्वारा भी जब फुल पार्टिसिपेशन हो और एक्सेसिबिलिटी हो इन पर्सन विद डिसेबिलिटीज पर जब बात हुई थी, तो उसमें इंडिया ने भी साइन किया था। एनईपी 2020 तो बात करता ही इंक्लूसिव एजुकेशन पर कि फ्लेक्सिबल टीचिंग होनी चाहिए, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग होनी चाहिए, यूडीएल जिसे हम कहते हैं, है ना, स्कूल में भी सपोर्ट पहुंचे। एंड आरसीआई की गाइडलाइंस तो कहते ही हैं कि प्रोफेशनल्स, ट्रेन प्रोफेशनल्स हो जो स्क्रीनिंग कर सके, इंटरवेंशन प्लान कर सके, कोलैबोरेशन हो, है ना। तो इन सभी बात और इन्हीं सभी पर नॉर्म्स एंड फ्रेमवर्क्स है जो हमारे इंक्लूजन पर हैं। एंड क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे डाइवर्स लर्निंग नीड्स वाले बच्चे होते हैं जिनको टाइमली सपोर्ट पहुंचाने की बहुत ज़रूरत है। एंड इन बच्चों का जब हम अगर हम इन बच्चों की बात करें तो कई बार क्या होता है, इन बच्चे बहुत जल्दी ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से, कोई भी क्लास से वो ड्रॉप आउट कर लेते हैं अपने आप को ना, जब उनका मतलब उनके परफॉर्मेंस में जब अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है, या फिर वो रूम कम होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ चाइल्ड सेंटर्ड हो एजुकेशन, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हम थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी ला सके। और इन सभी पर जितने भी हमने अभी डिस्कस किया है, इन सब पर काम करता है हमारा प्रोजेक्ट इंक्लूजन। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है वो इसी पर काम करता है कि ये जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स होते हैं उन बच्चों तक भी सपोर्ट पहुंचाया जा सके, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए एक इन्वायरमेंट रेडी हो सके, हम सब अपने आप को सेंसिटाइज कर सके। तो हमारा प्रोजेक्ट इंक्लूजन का जो प्रोग्राम है वो 2016 में लॉन्च हुआ था। एंड तब ये प्रोग्राम आज की तरह डिजिटलाइज नहीं था, तब हम ग्राउंड लेवल पे काम करते थे, हम खुद फिजिकली टीचर्स तक हम जाते थे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया करते थे। तो उस समय हम 14 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में हम गए, 20,000 प्लस टीचर्स को हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था, 18,000 से ज्यादा बच्चों को उन्होंने स्क्रीनिंग की थी कि शायद ये बच्चे में भी कोई डिफिकल्टीज या कंसर्न है। एंड हमारे एक्सपर्ट टीम ने उनका साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया तो पाया कि 6,600 कंफर्म न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के केसेस देखे गए थे। तो ये उस समय की बात है जब हम फिजिकली काम कर रहे थे, मीन्स फिजिकली जाते थे, 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग हुआ करती थी, एंड उस समय की बात चल रही थी। बट 2020 आया, जिसके बाद कोविड आ गया, एंड पॉसिबल नहीं था कि इस प्रोग्राम को हम ग्राउंड लेवल पे कंटिन्यू कर पाए। हमने इस प्रोग्राम को रोका नहीं, हमने इसे डिजिटलाइज किया। अब डिजिटलाइज करने के बाद क्या क्या फायदा हुआ हमें? सबसे पहले तो हमने लगभग सभी इंडिया के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कवर कर लिया है। मतलब हमारी पहुंच, हमारी जो एक्सेसिबिलिटी थी वो बढ़ गई, हमारी रीच बढ़ गई। हमने एक ही समय पे अब ज्यादा से ज्यादा टीचर्स तक, एजुकेटर्स तक, स्टेक होल्डर्स तक हम जुड़ पा रहे थे। 4 लाख से ज्यादा एजुकेटर्स को हमने सेंसिटाइज किया, 1 लाख से ज्यादा बच्चों की स्क्रीनिंग हो चुकी है, 10 लाख से ज्यादा
इंटरवेंशन, ऐसे पर्सनलाइज्ड इंटरवेंशन प्लान्स है जो शेयर किया गया है। तो आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि किस तरीके से जब हमने डिजिटलाइज्ड किया तो हमारा प्रोग्राम और बेटर तरीके से वर्क करने लगा, कॉस्ट एफिशिएंसी भी बची, टाइम भी हमारा सेव हुआ, एक ही समय पे हम बहुत ज्यादा एजुकेटर्स एंड टीचर्स से हम कनेक्ट कर पा रहे थे। तो प्रोजेक्ट इंक्लूजन काफी प्रोग्राम्स में काम करता है, ये उसका एक छोटा सा ओवरव्यू है। प्रोजेक्ट इंक्लूजन कैपेसिटी बिल्डिंग पर काम करता है, मींस हमारे ऐप है एंड वेब लिंक्स है, एप्स एंड लिंक्स पे आपको देखने को मिलेगा कुछ डिजिटल रिसोर्सेस है, मींस डिजिटल कोर्सेस है जो सभी स्टेक होल्डर्स के लिए है। तो उसके थ्रू आप लोग अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप कर पाते हैं। एडिशनली इंडियन साइन लैंग्वेज का भी कोर्स है, तो आप में से जो भी एजुकेटर इंडियन साइन लैंग्वेज सीखना है तो आप लोग वो कोर्स भी कर सकते हैं। वो हमारे ISLRTC के द्वारा हमारे ऐप में है, तो इजीली आप इस कोर्स को कर सकते हैं। 10 मॉड्यूल का कोर्स है। इसके अलावा कुछ हमारे सेंटर्स भी है, ऐसे सेंटर्स, ऐसा एक रिहैबिलिटेशन हब जहां पर फिजिकल रिहैबिलिटेशन मीन्स हमारे फिजिकल जो एक्सपर्ट होते हैं वो फिजिकली मौजूद होते हैं, एंड एक ऐसा सेंटर जहाँ पे बच्चे जाते हैं और उनके नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें सपोर्ट पहुंचाया जाता है बाय आवर एक्सपर्ट टीम, लाइक स्पेशल एजुकेटर हो या साइकोलॉजिस्ट हो या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो या स्पीच थेरेपिस्ट हो, वो मौजूद रहते हैं और ऐसा इन्वायरमेंट भी होता है जिससे कि वो उनके सपोर्ट उन तक पहुंचाया जा सके। तो इनके जो सेंटर्स हैं वो है चंडीगढ़ में है, देहरादून में है, गाजियाबाद, मुंबई, तिरुपति, दिल्ली, और बहुत जल्दी और भी आपको जगह पे सेंटर से ओपन होंगे। आपको हम इन्फॉर्म करेंगे जब भी अदर सेंटर्स भी यहाँ पे ओपन होते हैं। तो साथ ही साथ इंक्लूसिव सिस्टम पर तो हम लगातार काम कर रहे हैं। लगातार हमारे गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर आर्मी पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, समग्र शिक्षा, स्टेट गवर्नमेंट, RCI, इंडियन ISLRTC, DEPWD, लगातार हम सभी के साथ हम MOU साइन होता है, उनके साथ हम कोलैब कर रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर्स तक हम पहुंचकर उन तक सपोर्ट पहुंचा सकें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिजिटल रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं। डिजिटल रिसोर्सेस ना खाली आप टीचर्स और स्पेशल एजुकेटर और आप प्रोफेशनल्स के लिए, इवन पेरेंट्स के लिए भी। कई टीचर्स जुड़ते हैं, बच्चों के बारे में पूछते हैं हमसे कि इस बच्चे में ये कंसर्न है, क्या करना चाहिए, राइट? तो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट है, वो डिजिटली भी आपके साथ ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट इंक्लूजन मल्टीपल प्रोग्राम्स में काम कर रहा है, पर इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है CRE प्रोग्राम, जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो CRE प्रोग्राम आप सभी RCI प्रोफेशनल्स के लिए है, ठीक है, जिनके पास अपना CRR नंबर है, RCI रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स है, उन्हीं के लिए CRE प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने पर आपको 50 CRE पॉइंट्स मिलेंगे जो कि बिल्कुल फ्री है। इसका क्या प्रोसेस है आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फ्लो जान लेते हैं और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ से आप बिल्कुल केयरफुली सुनिएगा। इसमें मैं आपको CRE प्रोग्राम का एक फ्लो बताने वाली हूँ। 3 फेजेस में हमने इस प्रोग्राम को डिवाइड किया है। सबसे पहला फेज 1, इसमें क्या होगा, जैसे ही आप ऐप में रजिस्टर करते हैं CRE प्रोग्राम से, आपको एक कोर्स मिलेगा इंक्लूजन ऑन, हमारा जो इंक्लूजन है मेन स्ट्रीम क्लासरूम में, उससे रिलेटेड एक कोर्स है हमारा। तो आप वो कोर्स देखेंगे हमारे ऐप में, एक ही कोर्स है, उसमें 21 मॉड्यूल्स होंगे, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। 21 मॉड्यूल्स का ये कोर्स है एंड ये कोर्स कंप्लीट करने पर आपको एक स्कोर कार्ड, जो कि एक सर्टिफिकेट टाइप का है, स्कोर कार्ड, वो आपको मिलता है। जैसे ही आप मिल जाता है आपको स्कोर कार्ड, इट मींस आपने फेज 1 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब आप मूव कर जाते हैं फेज 2 स्क्रीनिंग पार्ट में। तो स्क्रीनिंग आपको एटलीस्ट किसी भी एक बच्चे की आपको स्क्रीनिंग करनी है। स्क्रीनिंग जैसे आप पूरा कर लेते हैं तो बच्चे के साथ आप काम करते हैं और उसके साथ आप काम करने के लिए आप लोग TLM बनाते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जब भी आप बच्चे के साथ काम करते हैं तो यूजुअली आप लोग बनाते हैं, TLM का यूज करते हैं। तो उसी TLM का एक क्लियर पिक्चर एंड उससे रिलेटेड एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन या फिर डिस्क्रिप्शन आप ऐप में अपलोड करेंगे। एंड जैसे ही आपका TLM एक्सेप्ट हो जाता है और आपको मिनिमम 3 महीने हो जाते हैं इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड किए हुए डेट से लेकर 3 महीने,
तो आप अपेयर करते हैं फाइनल असेसमेंट पे, जो कि 10 MCQ क्वेश्चंस होते हैं। एंड अगर आपका स्कोर 60% या उससे ज्यादा आता है तो आपके CRR नंबर को हम RCI में फॉरवर्ड कर देते हैं एंड विद इन 10 to 15 या 20 डेज के अंदर आपको 50 CRE पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं तीनों फेजेस के बारे में। सबसे पहले फेज 1, आपको ऐप डाउनलोड करना है एंड रजिस्टर करना है CRE प्रोग्राम में। CRE प्रोग्राम का एक अलग से ऑप्शन होगा, आपको उसी में रजिस्टर करना है, ना कि आप स्पेशल एजुकेटर प्रोफेशनल में नहीं करेंगे। आपको अगर CRE पॉइंट्स चाहिए तो आपको CRE प्रोग्राम में ही रजिस्टर करना होगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, आप कोर्स पे जाएंगे एंड आपके सामने कोर्स ओपन हो जाएगा इंक्लूजन एंड न्यूरो डाइवर्सिटी पर। एंड इसमें आपको 21 मॉड्यूल्स दिखेंगे। हर एक मॉड्यूल्स में 8 to 4 लगभग चैप्टर्स हैं एंड हर एक चैप्टर्स जो है वो ऑडियो विजुअल बेस्ड है। मीन्स इसमें आपको एनिमेटेड वीडियोस मिलेंगे, शॉर्ट इंटरेस्टिंग 2 to 3 मिनट्स एक एनिमेटेड वीडियोस है। सैंपल में आपको आगे दिखाऊंगी। तो वो वीडियो के द्वारा आप बहुत ही इजीली कोर्स को कर सकते हैं। अब जब मैं कोर्स की बात कर रही हूँ, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि कोर्स किस प्रकार का है, मीन्स क्या टॉपिक रहेंगे। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन आपको मिलेगा। एजुकेशन पॉलिसीज ऑन चिल्ड्रन विद एनडीडी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए क्या एजुकेशन पॉलिसीज हैं वो आपको पता चलेगा। स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज एंड डिसेबिलिटीज के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी इस कोर्स के अंदर। एंड कोर्स करने में लैंग्वेज बैरियर ना हो, इसलिए इसे मल्टी लैंग्वेज में डिजाइन किया गया है। करेंटली 9 लैंग्वेजेस में ये कोर्स अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, असमियन, पंजाबी। तो आप लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उस लैंग्वेज में कर सकते हैं एंड सभी चीजें फिर आपको उसी लैंग्वेज में शो होगी। इसके अलावा हमें पता है कि आप में से काफी ऐसे RCI प्रोफेशनल्स होंगे जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, रीडिंग करना पसंद है। तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगी, वीडियो जब आप पूरा देख लेते हैं तो उसके एंड में एक रीडिंग मटेरियल भी आता है, आप उसे पढ़ते हुए भी बहुत इजीली कोर्स को कर सकते हैं। मैं दोनों के सैंपल में आपको आगे दिखाऊंगी। देखिए ऐप में कुछ ऐसे शो होगा, कोर्स आपको दिखेगा इंक्लूजन ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी इन द मेन स्ट्रीम क्लासरूम। आपको इसी कोर्स पे क्लिक करना है। 21 मॉड्यूल्स विजिबल होते हैं, आपको एक एक मॉड्यूल्स कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो जैसे आप 21 मॉड्यूल्स कंप्लीट कर लेते हैं तो 21 मॉड्यूल्स से रिलेटेड एक फाइनल असेसमेंट आपके पास आता है, जो कि 15 MCQ क्वेश्चंस होते हैं, 15 MCQ क्वेश्चंस। जैसे ही आप उस MCQ क्वेश्चंस के असेसमेंट को देते हैं, अगर आपका स्कोर 70% या उससे ज्यादा आता है तो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। मैं उसको सैंपल आगे दिखाऊंगी। देखिए जैसे आप मॉड्यूल्स के चैप्टर्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके के वीडियोस होते हैं, एनिमेटेड वीडियोस है। इसका सैंपल आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको कनेक्ट करती हूँ एंड वीडियो में थोड़ा सा ही प्ले करूंगी कि आपको बस एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के वीडियोस हैं। बाकी जब आप लोग कोर्स करेंगे तो आपको ये सारे वीडियोस ऐप में मिल जाएंगे। Dyslexia, understanding the disorder ABCDEFG HIJK LMNOP QRS TUV WX Y and Z. You must be wondering, why are we revisiting learning alphabets at this stage? For you, these are simple alphabets. Within these 26 letters, you may be able to identify the vowels and consonants. Now, what if we say that this isn't the case with everyone? Meet Zoya. She's 6 years old. And this is how the letters appear to her. All that she sees is some dancing and floating shapes. Zoya has a hard time connecting letters to the sounds they make and then blending those sounds into words. Since she cannot pronounce the words or recognize their sounds, she cannot understand the meanings. So, what's the case with Zoya? Zoya has a disorder called dyslexia. Dyslexia is a language-based learning disability.
Students diagnosed with this condition face challenges in interpreting and processing language. सो एक आइडिया आप लोगों को हो गया होगा इतने से वीडियो देखने से कि किस तरीके के वीडियोस होंगे हमारे हर एक मॉड्यूल्स के चैप्टर्स में एंड कैसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको हर एक टॉपिक के बारे में समझाने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो वीडियो आपने देखा ये भी मल्टी लैंग्वेजेस में है, तो जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज में इन वीडियोस को भी देख पाएंगे एंड पूरा कोर्स ही उस लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये रीडिंग मटेरियल का सैंपल है। इसके थ्रू आप बहुत ही इजीली पढ़ते हुए भी कोर्स को कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था 21 मॉड्यूल्स कंप्लीट करने पर एक फाइनल एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, असेसमेंट आता है 15 एमसीक्यू। अगर आपका स्कोर 70% या उससे ज्यादा आएगा तो आपको ये स्कोर कार्ड मिल जाएगा। इट मींस आपने फेज 1 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, कोर्स आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और अब आप मूव कर जाते हैं फेज 2 स्क्रीनिंग में। तो स्क्रीनिंग टूल भी हमारे ऐप में ही है। आपको स्क्रीनिंग करने के लिए एटलीस्ट किसी एक बच्चे की आपको स्क्रीनिंग करनी ही होगी एंड बच्चा आप कहीं से भी चूज कर सकते हैं, आपके स्कूल में से या फिर कोई इंस्टीट्यूट से है, कोई एनजीओ में कोई बच्चा चूज करना है आपको, कोई नेबरहुड से, आपके फैमिली से, आप कहीं से भी एक बच्चा चूज कर सकते हैं जिनमें आपको लग रहा है कि शायद इस बच्चे में कोई डिफिकल्टीज या कंसर्न है एंड आप उस बच्चे को ऐड करेंगे और उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। तो हमारे ऐप में आपको स्क्रीनिंग टूल मिलेगा और इसे 3 स्टेजेस में हमने डिवाइड किया है, 3 लेवल स्क्रीनिंग होगी। तो सबसे पहला स्क्रीनिंग 1, बच्चे में क्या चैलेंजेस है, क्या कंसर्न है, कहीं बच्चा 21 डिसेबिलिटीज के किसी एक डिसेबिलिटी में तो फॉल नहीं कर रहा, उसके डाउट पर तो नहीं है, वो आपको स्क्रीनिंग 1 बता देता है। फिर आ जाता है प्रोफाइलर फॉर्म कि बच्चे में क्या क्वालिटीज है, क्या इंटरेस्ट है, बच्चे का क्या स्ट्रेंथ है, वो आपको प्रोफाइलर फॉर्म के थ्रू पता चलता है। एंड फिर आ जाता है आपके पास एडवांस स्क्रीनिंग कि डिटेल में अगर आपको प्रॉब्लम समझना है तो वो एडवांस स्क्रीनिंग हेल्प करता है कि आखिर बच्चे को कौन से डोमेन में प्रॉब्लम है, क्या बच्चे को एकेडमिक, सोशल, कम्युनिकेशन में या बिहेवियर में या कॉग्निटिव में या मेंटल वेलबींग में कहाँ पर चैलेंज है, डीपली प्रॉब्लम को समझने में एडवांस स्क्रीनिंग हेल्प करता है। इसलिए तीनों स्क्रीनिंग लेवल्स को कंप्लीट करना जरूरी है, मैंडेटरी है, तभी आपकी स्क्रीनिंग कंप्लीटेड मानी जाएगी। तो आपको स्क्रीनिंग 1, प्रोफाइलर और एडवांस स्क्रीनिंग तीनों पार्ट को कंप्लीट करना होगा। ये रहे स्टेटमेंट्स, ऐसे ही आते हैं स्टेटमेंट्स, कुछ लिखना नहीं आपको, बस स्टेटमेंट्स आते हैं, उन्हें पढ़ना है, बच्चे को ऑब्जर्व करना है एंड यस या नो में आपको आंसर करना है। क्या बच्चा बात करते वक्त आई कांटेक्ट करता है, यस या नो, तो आपको इस तरीके से आंसर्स करते रहने होंगे। ठीक है, जैसे आप सबमिट करेंगे तो वो आपका सबमिट हो जाता है। देखिए हमारे जो स्क्रीनिंग टूल है वो ग्रेड स्पेसिफिक डिजाइन है, क्लास स्पेसिफिक, ग्रेड वाइज। तो जैसे कि फाउंडेशन क्लास 1 and 2, प्रिपरेटरी क्लास 3 to 5, मिडिल क्लास 6 to 8 एंड सेकेंडरी क्लास 9 to 12। तो जब आप डिफरेंट ग्रेड ग्रुप्स के स्क्रीनिंग कर रहे होंगे तो आपको स्टेटमेंट्स में भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। एंड ये रहे रिपोर्ट्स, हर पार्ट में रिपोर्ट्स जनरेट होगा, मीन स्क्रीनिंग 1 का, प्रोफाइलर का, एडवांस स्क्रीनिंग का, तीनों का रिपोर्ट आपको विजिबल होगा। बच्चे के बेसिक डिटेल्स आ जाता है रिपोर्ट में, बच्चे में क्या कंसर्न्स है, बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, बच्चे के लिए क्या रेफर किया गया है, रिकमेंडेशंस क्या है, कंसल्ट क्या है, सारी चीजें आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में डिटेल में, जिससे कि आप बच्चे के कंसर्न्स एंड डिफिकल्टीज के बारे में डिटेल में समझ सके। इट मींस यहाँ पर अगर आपको तीनों रिपोर्ट्स मिल गए हैं तो इसका मतलब यही है कि आपने बच्चे की स्क्रीनिंग को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, तो जैसे आप बच्चे की स्क्रीनिंग कंप्लीट करते हैं, ऐप में बच्चे के रिगार्डिंग इंटरवेंशन प्लान्स विजिबल हो जाएंगे आपको। तो आपको उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है। इवन आप लोग डेफिनेटली आप जब बच्चों के साथ काम करते हैं आप लोग अपना TLM बनाते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एक ऐसा TLM आप बनाते हैं जिससे कि बच्चे को समझाने में इजी हो, बच्चे को सही तरीके से सपोर्ट पहुंच सके, वो आपको हेल्प करते हैं बच्चे को सपोर्ट पहुंचाने में। बेसिकली एक ऐसा TLM आप लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वही TLM का एक क्लियर पिक्चर
एंड उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन आप करेंगे कि ये टीएलएम कैसे फायदेमंद है, कैसे आप यूज करते हैं, कैसे बनाया गया, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप अपलोड करेंगे हमारे एप्लीकेशन में। सजेशन आप लोग की रहेगा कि अगर आप एक पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करते हैं कि एक टीएलएम का क्लियर 2-3 पिक्चर और उसके बारे में लिखकर आपने बता दिया है और उसका पीडीएफ आपने अपलोड किया है, तो चांसेस हाई हो जाते हैं एक्सेप्ट करने के, क्योंकि इसमें हमारे रिव्यू करते हैं टीएलएम हमारे एक्सपर्ट। तो जैसे आपने टीएलएम अपलोड तो 2 से 3 वर्किंग डेज के अंदर हमारे एक्सपर्ट उसे रिव्यू करेंगे। तो आपका टीएलएम रिजेक्ट अगर होता है तो आपको दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा एंड हमारी टीम के द्वारा भी आपको कॉल करके बताया जाएगा कि आपका टीएलएम रिजेक्ट हो गया है, प्लीज आप इस तरीके से इस बार अपलोड कीजिए, और रीजन भी बताते हैं कि रिजेक्ट क्यों हुआ है। तो मोस्टली रीजंस क्या रहते हैं कि टीएलएम जो आप लोग अपलोड करते हैं कई बार उसका पिक्चर ही क्लियर नहीं होता, टीएलएम ही विजिबल नहीं होता है, ठीक से दिखता ही नहीं है कि आखिरकार ये टीएलएम है क्या। तो एकदम क्लियर पिक्चर आपको अपलोड करना है। कई बार क्या होता है, ऐसे केसेस भी हमारे पास आए हैं कि पिक्चर आप लोग अपलोड करें, ठीक है, ऑप्शनल हो टीएलएम, आपने उनको इम्प्लीमेंट कर रखा हो बच्चों के साथ और इफेक्टिव हो वो टीएलएम, ठीक है। एंड एक्सेप्ट अगर होता है आपका टीएलएम और आपको 3 महीने इस प्रोग्राम में हो जाते हैं, मैं बार बार 3 महीने इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये मिनिमम 3 मंथ का प्रोग्राम है। मींस आज आपने रजिस्टर किया है इस प्रोग्राम में, फॉर सपोज अगर आपने आज रजिस्टर किया इस प्रोग्राम में, तो आज से लेकर 3 महीने तक आपको इस प्रोग्राम में काम करना ही होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज रजिस्टर किया है आपने और 1 हफ्ते के अंदर आपने कोर्स भी कर लिया, स्क्रीनिंग कर लिया, टीएलएम भी अपलोड कर लिया, एक्सेप्ट भी होकर आपको अब लग रहा है कि सीआरई पॉइंट्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, 10 दिन के अंदर नहीं मिलेंगे। मिनिमम आपको 3 मंथ इस प्रोग्राम में काम करना ही होगा। आप अपने पेस पे कर सकते हैं क्योंकि 24 आवर एक्सेसिबल ये ऐप है, मतलब पूरे दिन में कभी भी आप फ्री हो आप इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं। हम समझते हैं कि आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप लोग बिजी रहते हैं, आपका बिजी स्केड्यूल होता है, इसलिए हमने कोई टाइम बाउंड्रीज नहीं रखी है कि डेली आपको इसी टाइम पर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि आज मान लीजिए आपके पास बहुत टाइम है, आपने 1 घंटा निकाल के कोर्स किया, कल आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपने कल नहीं किया, परसों आपके पास थोड़ा टाइम हुआ, आपने आधा घंटा दिया। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम निकालकर इस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कोर्स को कर सकते हैं। बस इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगी। 3 महीने तक आपको इस प्रोग्राम में काम करना होगा। अगर आज आपने रजिस्टर किया है तो आज से लेकर 3 महीने तक, जब भी आपका 3 महीने बाद डेट होगा, उसी के बाद आपके पास फाइनल असेसमेंट ओपन होगा, एक्सेसिबल होगा, और उसमें आते हैं 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस। वो जब आप 60% या उससे ज्यादा स्कोर करते हैं तो आपको जो सीआरआर आपका नंबर होता है वो हम आरसीआई में फॉरवर्ड कर देते हैं। देखिए इंटरवेंशन प्लान्स तो आपको ऐप में ऐसे दिखेंगे, लेफ्ट साइड में बच्चे के कंसर्न्स हैं एंड राइट साइड में प्लान्स है, स्ट्रैटेजीज है। बट ऑब्वियसली आप लोग एक्सपर्ट है, आपके पास अपने भी स्ट्रैटेजीज हैं, तो आप अपना मिला जुला स्ट्रैटेजीज आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, सो ओवरऑल जर्नी में फाइनली एक शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगी कंप्लीट जर्नी कैसी होने वाली है आपके सीआरई प्रोग्राम प्रोजेक्ट इंक्लूजन में। तो मैं जल्द से जल्द आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप डाउनलोड करना होगा, और जितने भी iOS यूजर आईफोन जो यूज कर रहे हैं या जो कि लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज करना चाहते हैं उनके लिए वेब लिंक है, दोनों के लिंक्स आपको चैट बॉक्स में शेयर किए गए हैं और दोबारा कर दिए जाएंगे। इवन आप लोगों के रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में भी सारी डिटेल्स एंड लिंक शेयर कर दिए जाएंगे। तो आप लोगों को रजिस्टर करना है सीआरई प्रोग्राम में, उसी में आपको कोर्स मिलेगा 21 मॉड्यूल का कोर्स। आप वो कोर्स कंप्लीट करेंगे, आपको स्कोर कार्ड मिलेगा, फिर आप एटलीस्ट एक बच्चे की स्क्रीनिंग करेंगे, एडवांस स्क्रीनिंग तक। फिर उस बच्चे के रिगार्डिंग जो भी इंटरवेंशन प्लान्स ऐप में शेयर किए जाते हैं, इवन आप लोग की अपनी पर्सनल जो स्ट्रैटेजीज है आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड काम करते हुए बच्चे के साथ आप एक टीएलएम बनाएंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो बच्चों के लिए इफेक्टिव हो। उसे टीएलएम के क्लियर पिक्चर और उसे टीएलएम के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप ऐप में अपलोड करेंगे।
जैसे आपका TLM एक्सेप्ट होता है और आपको 3 महीने में इस प्रोग्राम में हो जाता है, तो आपको पास जो है वो फाइनल असेसमेंट आ जाता है 10 MCQ क्वेश्चन। आपको 60% से ज़्यादा स्कोर करना है, तभी हमारे जो CRR नंबर है वो हम RCI को फॉरवर्ड कर देते हैं एंड 20 to 25 डेज के अंदर आपके पास 50 CRE पॉइंट्स क्रेडिट हो जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा, जर्नी रहेगा। देखिए बेनिफिट क्या है इस प्रोग्राम का, ऑब्वियसली आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये एक बहुत बड़ा डिजिटली CRE प्रोग्राम है। इसके लिए एक बेंचमार्क ये साबित होता है, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल से आपको पता होगा कि CRE पॉइंट्स के लिए एक तो फीस चार्ज किए जाते है, उसमें आपको 4 CRE पॉइंट्स, 6 CRE पॉइंट्स, 4 CRE पॉइंट्स ऐसे ही कुछ मिलते हैं। बट ये एक ऐसा बेंचमार्क है जिसमें आपको एक बार में 50 CRE पॉइंट्स दिए जा रहे हैं, वो भी डिजिटली। इट मींस वो भी अपने पेस पे, मतलब कोई टाइम लिमिट में नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, पूरे दिन में जब भी आप फ्री हो इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो ये अपने आप में ही एक बेंचमार्क साबित होता है। साथ ही साथ इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। टाइम भी इसका कुछ बाउंड्रीज नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइम में इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये डेवलप भी किया गया है हमारे एक्सपर्ट के द्वारा, हमारे स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, जो भी बहुत ही प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड हमारे लीडर्स हैं, उनके द्वारा ये डिज़ाइन कोर्स है। साथ ही साथ वेल ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें ये नहीं कि सिर्फ जानकारी दी जा रही है, आप रियल वर्ल्ड में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सारी चीज़ें, मतलब खाली जानकारी ही नहीं, आपको इसमें स्क्रीनिंग टूल, इंटरवेंशन प्लान्स, हमारे एक्सपर्ट सपोर्ट, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये RCI नॉर्म्स को भी पूरी तरह से फोकस करता है। ठीक है, तो अक्रॉस इंडिया ये हमारा प्रोग्राम है, मीन्स इंडिया में कोई भी कोने से भी कोई एक्सपर्ट अगर इस प्रोग्राम को करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया में ये हमारा है। तो बेसिकली आपको बेनिफिट तो पता चल गया है। अब मैं एक छोटा सा वॉक थ्रू वीडियो आपको दिखा देती हूँ, इससे आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि आखिर आपको ऐप में कैसे एक्सेस करना है, कैसे क्या दिखेगा, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आएगा लैंग्वेज चूज करने का। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में अगर देखा होगा मल्टी लैंग्वेजेस है, तो जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल है आप उस लैंग्वेज में सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोफाइल चूज करने का ऑप्शन आता है, आपको करना है CRE प्रोग्राम पे क्लिक। सॉरी, मोबाइल नंबर से आप रजिस्टर करेंगे, OTP आएगा, पहली बार OTP आता है। आप लोग अपना पासवर्ड क्रिएट कर ले। पासवर्ड क्रिएट इसलिए करना है कि बार बार आपको फिर OTP से लॉगिन ना करना पड़े, तो एक ही बार OTP आएगा जब आप स्टार्टिंग में रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आप पासवर्ड से लॉगिन कर पाएंगे। ओपन होते ही जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं, तो आपको बेसिक डिटेल्स फिल करना है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, फोन नंबर, आपका व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक। ठीक है, और सजेशन रहेगा उसी स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक को आप सिलेक्ट कीजिएगा जहाँ के बच्चों की आपको स्क्रीनिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि आपके ब्लॉक के अकॉर्डिंग ही बच्चे के स्कूल्स फेच होंगे। एंड उसके बाद CRR नंबर आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड सिलेक्ट नहीं, मतलब आपको फिल करना है CRR नंबर एंड इंस्टीट्यूट जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसका नाम, अपने प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन, सारे बेसिक डिटेल्स बेसिकली आपको फिल करनी है। फिर जैसे आप कोर्स पे क्लिक करते हैं आपको मिल जाता है इंक्लूजन ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी इन द मेन स्ट्रीम क्लासरूम का कोर्स, 21 मॉड्यूल का कोर्स। सारे मॉड्यूल्स ओपन होंगे, पर पहले आपके पास आएगा प्री असेसमेंट। जैसे प्री असेसमेंट स्टार्ट होता है, घबराना नहीं, ये आपके प्री नॉलेज चेक के लिए है, मतलब प्रीवियसली आपको इस टॉपिक के बारे में कितना क्या नॉलेज है उसका एक प्रीवियस चेक के लिए होता है बस। ऐसा कुछ नहीं कि इसमें कोई स्कोरिंग क्राइटेरिया या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, बस नॉलेज चेक के लिए आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। ओके, मॉड्यूल्स ओपन होते हैं, चैप्टर्स आप विजिबल होंगे। Inclusive education, introduction, understand. अभी जैसे मैंने एनिमेटेड वीडियो दिखाया था, कुछ इसी प्रकार के वीडियोस आपको विजिबल होंगे, आप वीडियो को देखते हुए बहुत ही इजीली कोर्स को कर पाएंगे। तो ऐसे चैप्टर, असेसमेंट और इस तरीके से आपको कोर्स करना है। अब आता है जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग आपको इंट्रोडक्शन आएगा, प्लस के साइन पर क्लिक करते हुए आपको किसी एक बच्चे की स्क्रीनिंग करनी है।
एटलीस्ट एक बच्चे की, ठीक है। आप बच्चे के बेसिक डिटेल्स फिल करते हैं, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम और जेंडर, स्कूल, क्लास, ये आप सिलेक्ट करेंगे। एंड देन बच्चे के पेरेंट का नाम और पेरेंट मोबाइल नंबर, बच्चे का रेजिडेंस क्या है, अर्बन है या रूरल है, बोर्ड क्या है और स्कूल टाइप, ये सब कुछ आप सिलेक्ट करेंगे तो स्क्रीनिंग 1 स्टार्ट हो जाता है। स्टेटमेंट्स आते हैं, पढ़ते हुए आपको यस या नो में आंसर्स करने होते हैं और सिर्फ यही है, तो एकदम केयरफुली स्टेटमेंट्स को रीड करना। जैसे आप सबमिट करेंगे स्क्रीनिंग 1 का तुरंत रिपोर्ट जनरेट होता है। फिर आ जाता है प्रोफाइलर फॉर्म, इसके भी कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट्स और ऑप्शंस आते हैं, आपको बच्चे को ऑब्जर्व करते हुए फिल करना है। एंड जैसे ही आप प्रोफाइलर फॉर्म को भी फिल करते हैं, इसका रिपोर्ट जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रोफाइलर फॉर्म के भी जब आप पूरा फिल कर देते हैं तो इसका रिपोर्ट होता है। फिर एडवांस स्क्रीनिंग, एडवांस स्क्रीनिंग में भी कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं, यस या नो में आंसर्स करने होते हैं, तो ये भी आप बहुत केयरफुली कीजिएगा बच्चे को ऑब्जर्व करते हुए, कि जैसे आप एडवांस स्क्रीनिंग भी पूरा फिल कर देते हैं तो आपके सामने इसका भी एक पूरा रिपोर्ट विजिबल हो जाता है। फिर आ जाते हैं इंटरवेंशन पार्ट, ठीक है। इंटरवेंशन मतलब ये इसलिए है कि आपके रेफर किया गया है कि कुछ प्लान्स भी है जो ऐप में दिए गए हैं बच्चे के कंसर्न्स के अकॉर्डिंग। देखिए बच्चे के कंसर्न सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे और कंसर्न्स की सबसे पहले आपको किस पे काम करना है, आप रीड प्लान पे क्लिक करेंगे तो स्ट्रैटेजीज ओपन हो जाती है। इस तरीके से आप देख पाएंगे ऐप में, बट आप लोगों के पास अपनी स्ट्रैटेजीज होती है तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज को भी यूज कर सकते हैं, ये बस आपके ऑप्शनल है। ये रेफर किए गए हैं प्लान्स जिनका भी आप यूज कर सकते हैं। फिर जैसे ही आप लोग मोर पर क्लिक करेंगे, आपको ऐप में मोर का ऑप्शन दिखेगा। मोर पे क्लिक करते ही आपके पास आएगा, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आप लोगों ने, थोड़ा सा वेट कीजिए, मोर पे क्लिक किया, फाइनल असेसमेंट पे क्लिक किया, अपलोड डॉक्यूमेंट मींस यहीं पर आपको टीएलएम अपलोड करना है और इस पे आप पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिखा है आप मैक्सिमम 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, चाहे आपको इमेज करना हो, पीडीएफ करना हो, डॉक में करना हो, डॉक्यूमेंट्स में करना हो, वो आपकी चॉइस है, पर 2-2 एमबी के 3 डॉक्यूमेंट्स ही आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप अपलोड करेंगे 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो रिजेक्ट होगा तो ऐप में देखिए रिजेक्ट होने के बाद वो भी विजिबल होगा। पहले तो 2 से 3 दिन के अंदर रिव्यू होगा, ये तुरंत नहीं होगा, 2 से 3 दिन के अंदर ये रिव्यू होता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस जब आपका टीएलएम एक्सेप्ट हो जाता है और आपको 3 महीने में इस प्रोग्राम में हो जाते हैं तो देखिए स्टार्ट असेसमेंट का ऑप्शन है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो दिख रहे हैं आपको बट ऑप्शन हाइड है क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए सिक्योरिटी के लिए है कि आप लोग अपने पेस पे आंसर करें। एंड देखिए टाइमर स्टार्ट हो जाता है 15 मिनट का। तो आप लोग जैसे ही असेसमेंट को क्लियर करते हैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको 60% से ज्यादा स्कोर आता है तो आपके सीआरआर नंबर को मार्क्स फॉरवर्ड कर देते हैं। विद इन 20 to 25 डेज आपको 50 सीआरई पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोग्राम है, सब कुछ हमारे ऐप में है। बट आई नो कि जब आप प्रैक्टिकली इसको कर रहे होंगे आपको कोई डाउट या कंसर्न आ सकता है। तो इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ डाउट और कंसर्न तो आप हमारे सपोर्ट नंबर एंड सपोर्ट मेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज सपोर्ट व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर एंड सपोर्ट मेल आईडी। तो आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम एनी डे, बट आपको रिस्पांस मिलेगा हमारे वर्किंग डेज में, मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से शाम 5 बजे तक, ठीक है। आपको रिस्पांस इस टाइम पे मिलेगा बट आप अपना कंसर्न कभी भी पूछ सकते हैं। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। बाकी इसके जो व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर सपोर्ट मेल आईडी है हम दोनों ही आपके चैट बॉक्स में इवन आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट नंबर्स हैं जो आप इसके थ्रू बहुत ही इजीली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और सजेशन और फीडबैक एनीथिंग देन आप हमसे इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ये क्यूआर कोड है, ये हमारा लेफ्ट साइड में है प्रोजेक्ट इंक्लूजन ऐप का क्यूआर कोड एंड राइट साइड में वेब लिंक का।
तो इसे स्कैन करके आप एक्सेस कर पाएंगे। दोनों के लिंक्स आपको शेयर किए जाएंगे। ऐप आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंक्लूजन टाइप करेंगे तो ऐप हमारा विजिबल हो जाता है। बाकी लिंक्स भी आपको शेयर किए जाएंगे एंड वेब लिंक का लिंक है वो भी शेयर किया जाएगा। तो जितने भी iOS यूजर है जो आईफोन में यूज करना चाहते हैं या डेस्कटॉप में या लैपटॉप में, वो वेब लिंक का यूज कर सकते हैं। दोनों आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर किए जाएंगे। एंड ये हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि डाउट क्लियरिंग सेशन जो है वो मंडे टू फ्राइडे होते हैं। इवन नाम से आपको पता लग गया होगा कि आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने के लिए सेशन रखे गए हैं। तो जब आपको लगे कि मुझे किसी एक्सपर्ट से बात करनी है रिगार्डिंग एनीथिंग, आपको बच्चे की रिगार्डिंग भी बात करनी है या सजेशन या फीडबैक, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमारे एक्सपर्ट ज्वाइन करते हैं, साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर एंड टेक्निकल सपोर्ट टीम, जो आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो ये एवरी वीक होते हैं, मंडे टू फ्राइडे शाम 4 बजे। लिंक हमेशा सेम रहता है जो कि आपको चैट बॉक्स के थ्रू शेयर किए गए। नाउ अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, आपको कोई डाउट या कंसर्न है तो प्लीज आप अनम्यूट या चैट बॉक्स में टाइप करके भी हमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको पूरी तरह से हेल्प एंड सपोर्ट एंड क्लियरिटी दी जाएगी। एनी डाउट, एनी कंसर्न। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया है किस तरीके से क्या प्रोसेस है। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट एंड कंसर्न प्लीज आस्क। आप अनम्यूट कर सकते हैं एंड चैट बॉक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। থেংক ইউ পূজা মেম। আপোনালোকৰ কিবা যদি প্ৰশ্ন আছে সুধিবলগীয়া আপোনালোকে সুধিব পাৰে। কাৰোবাৰ কিবা যদি ডাউট আছে, কুৱেশ্যন আছে, আনমিউট কৰি পেলাই। আৰু অলৰেডি আপোনালোকে গম পাইছেই ন কেনেকে কৰিব লাগে সকলোৱে এবাৰ। তো মই অকনমান শৰ্টত কৈ দিওঁ। সকলোৱে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত গৈ পেলাই প্ৰজেক্ট ইনক্লুজন চাৰ্চ কৰি পেলাই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আমি গ্ৰুপতো ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকক লিংক দি দিবলৈ। তাৰ পৰা আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এপটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত মেমে যেনেকে ক'লে আপোনালোকে CRE প্ৰগ্ৰেমত গৈ পেলাই ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ দি। খালি আপোনাৰ নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰটো যদি আগতে আমাৰ আৰু এটা প্ৰগ্ৰেম আছিলে 17টা মডিউলৰ, সেইটোত যদি আপোনালোকৰ ভিতৰত কোনোবাই ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰি ৰাখিছিলে তেতিয়া সেই মোবাইল নাম্বাৰটো নিদিব। আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বা আপোনাৰ যদি আন বেলেগ এটা নাম্বাৰ আছে সেইটো দি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিব। তো ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰাৰ পিছত আপুনি কোৰ্সটো 21টা মডিউলৰ যি কোৰ্স আছে আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব। কোৰ্সটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত আপোনাৰ প্ৰি এছেছমেন্ট এটা ল'ব আপোনাক, যাতে আপুনি সেই কোৰ্সটোৰ বিষয়ে কিমানখিনি গম পায়। সেইটো একো মাৰ্কিং বা স্কোৰ নাথাকে, আপুনি নিজৰ মতে সেইটো কৰিলেই হ'ল। তো সেইটো কৰাৰ পিছত মিনিমাম আপোনাৰ 3 মাহ সময় থাকিব। সেই 3 মাহৰ ভিতৰত আপুনি আপোনাৰ যি কোৰ্স আছে সেইটো কৰি পেলাই এজন ষ্টুডেন্ট যিকোনো লৈ পেলাই আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু সেই ষ্টুডেন্টৰ ওপৰতে আপুনি এটা কেছ ষ্টাডি বনাব লাগিব। তো ইমানখিনিলৈকে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে ন? হয়, গম পাইছে। তো কাৰোবাৰ বেলেগ কিবা ডাউট আছে নেকি আপোনালোকৰ? আৰু আপোনালোকে আমাক হোৱাটছএপ গ্ৰুপতো কানেক্ট কৰিব পাৰে। তাতো কিবা থাকিলে আপোনালোকে জনাব আমাক, আমি আছো তাতো। হেল্ল'। হয় মেম, কওক। মই যোৰহাটৰ পৰা কৈছো দীপ্তি বৰা। আপুনি যে হয় হয় এইমাত্ৰ ক'লে সেই 17টা মডিউলৰ SLDৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলো আমি প্ৰজেক্ট ইনক্লুজনত, হয় 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 সেই প্ৰগ্ৰেমটো কৰাৰ যিটো নম্বৰ আছিলে সেইটোৱে মোৰ RCI ফোন নাম্বাৰ হয়। সেইটো দি এতিয়া আকৌ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব নোৱাৰিম নেকি? মানে সেম মোবাইল নাম্বাৰ যদি আপুনি দি পেলাই ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰে তেতিয়া অলৰেডি এক্সিষ্ট বা এনেকে দেখুৱাব। তো একো কথা নাই, আপুনি যিকোনো বেলেগ এটা নাম্বাৰ দি পেলাই ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰিব। সেইটোত একো অসুবিধা নাথাকে। মানে যিহেতু আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ স্কোৰটো দিয়া যাব মানে RCI লে, গতিকে সেইটো নাম্বাৰৰ লগত কোনো কথা নাই। থেংক ইউ। ঠিক আছে, বাইদেউ, থেংক মই ইউ সো মাচ। বাক্সাৰ পৰা ভূদেৱ গোস্বামীয়ে ক'লো। হয় হয় ছাৰ, কওক। আমাৰ চিলড্ৰেনৰ কিবা টাৰ্গেট থাকিব নেকি যে 3 মাহৰ যিটো নাই 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 ডিউৰেচন কোৰ্স নাই, খালি সেইটো মিনিমাম কিমান আপুনি গম এজন ষ্টুডেন্ট ল'ব লাগিব ছাৰ। মিনিমাম এজন? হয়। আৰু যদি 3 মাহত 50 পইণ্ট আহিব নেকি গোটেইখিনি কমপ্লিট হয়?
হয় ছাৰ। গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পিছত 50 পইণ্ট যদি চিআৰই আহে নেক্সট হয়তো এবছৰৰ ভিতৰত আৰু মানে এগেইন তেনেকুৱা অপচন নাহিব চাগে, মই মানে এনে সুধিছো কথাটো। মানে এতিয়ালৈকেতো সদ্যহতে আমাৰ যিটো কোৰ্চ আছে তাত 50 চিআৰই পইণ্ট লৈ পেলাই সাজু কৰা হৈছে। পিছলে যদি নতুনকে আকৌ তেওঁলোকে বা আমাৰ ফালৰ পৰা আমি আকৌ আগবঢ়াও, সেইটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। কিন্তু এই 3 মাহৰ ভিতৰত আপুনি যেতিয়া এজন শিক্ষাৰ্থী লৈ পেলাই আপোনাৰ কেছ ষ্টাডিটো বনাব, তাত আপুনি মেমে যেনেকে দেখুৱাইছিলে তাত আপলোড এটা অপচন থাকিব। তাত আপুনি 2 MB কে PDF হওক বা ডকুমেন্ট হওক, সেই গোটেইকেইটা আপুনি 2 MB ভিতৰত 3টা ডকুমেন্টছ আপুনি আপলোড কৰিব পাৰিব কেছ ষ্টাডিটো। আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনাৰ 2 to 3 ডেজৰ ভিতৰত তেওঁলোকে সেইটো ৰিভিউ কৰিব এক্সপাৰ্টে। আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো এছেচমেন্ট আছে সেইটোতো আপুনি 60% ওপৰত পাব লাগিব, মানে তেতিয়াহে আপোনাৰ সেই যিটো আপোনাৰ চিআৰই মানে RCI লে তেওঁলোকে আপোনাৰ CRR নাম্বাৰটো পঠিয়াব, আৰু 20 বা 25 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ এই 50 পইণ্টছটো আপোনাৰ ক্ৰেডিট হ'ব। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। হয় আকৌ আৰু এইটো এটা সুধো কি আমি কিমান হয় দিন ছাৰ। পিছৰ পৰা এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিম, মানে আমাৰ ধৰক ডাউনলোড কৰি লৈ পেলাই? অলৰেডি আমি আপুনি এটা কামত এংগেজ হৈ আছো, যিটো আমাৰ অনলাইন IP মানে এমপেথি ব্ৰিজৰ লগত IP এটা কামত আমি এংগেজ হৈ আছো। তো অ'কে ছাৰ। তাৰে ভিতৰতে আমি সেইটো কিমান দূৰ মানে পাৰিম ছাপোৰ্ট কৰিব অলপ ট্ৰাই কৰিম। তো হয় আমি কিমান দিন পিছত এক্টিভেট হৈ থাকিব, বা অলৰেডি হৈয়ে আছে নেকি? অলৰেডি হৈয়ে আছে ছাৰ। আপুনি ধৰক আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, হয় আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব আৰু গ্ৰুপত বাক্সাৰ পৰা ক'লে ন আপুনি? হয় হয়। বাক্সাৰ গ্ৰুপো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে। আপুনি তাতো আপোনাৰ DPO ছাৰক, বাক্সাৰ এবাৰ ধীৰাজ ছাৰে চাগে জইন কৰাইছেও, যদি নাই কৰোৱা তেতিয়াহ'লে আপুনি এবাৰ ক'ব তেখেতক লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ। কিবা যদি অসুবিধা পায় আমাক গ্ৰুপতে আপুনি জনালে হ'ল, বা কাষ্টমাৰ নাম্বাৰো আপোনাক দিয়া হৈছে নহয়, হেল্পলাইন নাম্বাৰ। তো আপুনি হয় আজি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব টাইম মিলাই। আৰু এনেকুৱা নহয় যে আপুনি প্ৰতিদিনেই গোটেই দিনটো দিব, যিহেতু 24x7 এইটো এভেইলেবল থাকিব। আপুনি আপোনাৰ বিজি চিডিউলৰ পৰা ডেইলি 1 ঘণ্টা 15 মিনিট 20 মিনিট, যিহেতু 3 মাহ সময় আপোনাক দিয়া হৈছে, আপুনি মিলাই ল'ব ছাৰ। ঠিক আছে, থেংক ইউ। থেংক ইউ ছাৰ। হয়। আৰু তিনিমাহ কাৰো? হেল্ল' হয় মেম কওক। 3 মাহৰ ভিতৰত আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পৰা 3 মাহৰ ভিতৰত যদি চামহাও কিবা এটা কাৰণে যদি আমি নোৱাৰো কমপ্লিট কৰিব, এইটো কেনচেল হৈ যাব ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো? এইটো আপোনাৰ মিনিমাম 3 মাহ বুলি কৈছে, মেক্সিমাম ধৰক তেনেকুৱা একো সময়ৰ কথা দিয়া নাই। কিন্তু যিহেতু কোৰ্চ মডিউলটো আপোনাৰ 3 মাহৰ ওপৰতে ডিজাইন কৰি বনোৱা হৈছে। আপুনি হয় এবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰক, যদি তেনেকুৱা কিবা অসুবিধা হয়, বা আমি আছোৱেই। নাই মই জাষ্ট সেইটো সুধি ললো, মানে ডে কাউন্ট কৰে নে? কাৰণ এক্টিভ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকেতো গমেই পাব যে এই হয় মানুহজনে আজি এইটো এক্টিভিটি কৰিলে, এইটো এটা হয় হয় মডিউল চালে, আপোনালোকৰ তাত ৰেকৰ্ড এটা আহিয়ে যাব। এতিয়া হয় মেম। সেইফালৰ পৰা আমি 120 ডেইজত হ'ব সেনেকুৱা কিবা কাউন্ট আছে নে? পুৰা 3 মান্থছ বুলি, মানে এইটো জানুৱাৰীৰ পৰা ধৰক মাৰ্চলৈকে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হেৰি আছে? মই হয়, সেইটোহে জানিম। আপুনি ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰাৰ পৰা 3 মাহ সময়সূচী দিয়া হৈছে। 3 মাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ মিনিমাম মানে আপুনি 3 মাহৰ ভিতৰত কৰিব লাগে। কিছুমানে ভাবিব পাৰে ধৰক, আপুনি এতিয়া 10 দিনৰ ভিতৰতো কমপ্লিট কৰিম বুলি কেতিয়াবা ভাবিব পাৰে। তো সেই বস্তুটো নকৰি পেলাই 3 মাহৰ ভিতৰত আপুনি যেতিয়াই পাৰে মানে কৰি পেলাই গৈ আছে। বাই চান্স এই 3 মাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ কিবা কাৰণত কমপ্লিট নহ'ল, তেতিয়া আপুনি আগলৈ আৰু লৈ যাব পাৰিব, বা কিবা অসুবিধা হ'লে আমাকো এবাৰ জনাব। কিন্তু মিনিমাম 3 মাহ, মেক্সিমাম কোনো তেনেকুৱা একো সময়সূচী নাই। আচ্ছা, ঠিক আছে, থেংক ইউ। য়েছ, আৰু এটা বস্তু এড কৰি দিওঁ। নমস্কাৰ দেই, মোৰ নাম ৰোহিত। চ' আমাৰ যোন 3 মান্থছৰ আছে, 3 মান্থছৰ মেইন টাৰ্গেটটো হৈ গ'ল যে আপোনাৰ যোনটো ফাইনেল এছেচমেণ্ট, 10টা প্ৰশ্ন যে আহিব মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন, সেই প্ৰশ্নটো 3 মান্থছৰ পিছতে অপেন হ'ব। কোনোবাই হয়তো এমাহত TLM বনাই পেলাই কমপ্লিট কৰি দিব পাৰে, কিন্তু 3 মান্থছৰ পিছত সেই MCQ টো ফাইনেল এছেচমেণ্টটো অপেন হ'ব। বাকী লীনা মেমে কোৱা নিচিনাকে তেনেকুৱা কোনো নিৰ্ধাৰিত কৰা হোৱা নাই 3 মান্থছ, তাতকে আপোনাৰ এক্সটেণ্ডো হ'ব পাৰে, যিহেতু আপোনালোক চব বিজি থাকে। আৰু এটা বস্তু মই এড কৰিব বিচাৰিম যে যোনটো আমাৰ ষ্টুডেণ্ট চিলেকশ্যনৰ কথা কৈছে, চ' সেইটো হয়তো এনেকুৱা মেণ্ডেটৰী নহয় যে অকল গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলৰে হ'ব লাগিব, আউট অফ স্কুলো হ'ব পাৰে। যদি আউট অফ স্কুল হয় তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব ষ্টুডেণ্টছৰ ডিটেইলছ দিওঁতে স্কুলৰ নাম নিদি পেলাই বেলেগকেও কৰিব পাৰে।
যদি স্কুলৰ নাম দিয়ে তেতিয়াহে ইউডাইচ কোড আদি কৰি বিচাৰিব। চ' আপুনি স্কুলৰ বাহিৰতো যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্টক কাম কৰি আছে তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টটো ল'ব পাৰে। হেল্ল' হয় ছাৰ কওক। হেল্ল' মেডাম, হয় মোৰ ছাৰ। এটা কথা আছিল, এইটো এপছত এই কোৰ্চটো অনগয়িং প্ৰচেছ নে কিবা লিমিটেড পিৰিয়ডলৈকে থাকিব, যেনে 6 মাহৰ ভিতৰত আৰু কোৰ্চটো নাথাকে, সেনেকুৱা কিবা কথা আছে নেকি? ছাৰ এইটো অনগয়িং প্ৰচেছ হয়। এতিয়া আমাৰ হয় যিহেতু অলৰেডি হৈয়ে আছে, তো আপুনি হয় যদি ভাবিছে যে মই আজি ৰেজিষ্টাৰ্ড কৰি পেলাই আজিয়ে কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিম, কিন্তু আপোনাৰ যিটো ফাইনেল মানে এক্সাম হ'ব, এছেচমেন্ট হ'ব CRR নাম্বাৰৰ কাৰণে, পইণ্টৰ কাৰণে, সেইটোহে খালি 3 মাহৰ পিছত আপোনাৰ কুৱেশ্যন খিনি ওলাব। মানে 3 মাহলৈকে আপুনি সেইটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিব। যেতিয়া সেই 3 উম, মাহ সময়সূচীটো পাৰ হ'ব, তাৰ পিছত আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব। গতিকে সেইটো মানে তেনেকুৱা একো কোৰ্চটো কথা নাই। হয়, কোৰ্চটো মানে এপছত থাকিবই আৰু ন? হয়, এপছটো থাকিব, কিন্তু আপোনালোকে হয় চেষ্টা কৰিব যে লাহে লাহে 15-20 মিনিটকে যাতে সময়টো দি পেলাই কৰি গৈ থাকে। তেতিয়া যিহেতু উম, এতিয়া আমি অসমত ষ্টাৰ্ট কৰিছো, তেতিয়া আমি সকলোৱে একেলগে যেতিয়া গোটেইখিনি কৰিম, তেতিয়া আমি গমো পাই যাম কিবা কাৰোবাৰ অসুবিধা হৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাক সহায় লাগে বা আমি কি কৰিব পাৰো, আৰু যদি নতুনকে কিবা আপডেট আনিব পাৰো। গতিকে আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰি চাব নিজৰ সময়ৰ পৰা মিলাই পেলাই। হয়, আৰু কাৰোবাৰ কিবা আছিল নেকি? হেল্ল' মেম। হয়, ৰহিমা মেম কওক। হয় মেম, একচুৱেলি মোৰ কুৱেশ্যনটো এনেকুৱা যে যিটো আমাৰ MCQৰ আনচাৰখিনি আমি কৰিব লাগিব, যিখন আমি চাৰ্টিফিকেট পাম, ধৰক হয়। মাৰ্কখিনি আপোনালোকৰ নিৰ্ধাৰিত মাৰ্কছ আছিলে, চ' তাতকে যদি আমি তলত নম্বৰ পাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি মানে আৰু আগুৱাই যাব নোৱাৰিম নেকি? চাৰ্টিফিকেটখন নাপাম নেকি? তেতিয়া আপুনি আকৌ প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ আকৌ নতুনকে মানে যেতিয়া ফাইনেল এছেচমেন্টটো আপুনি আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিব লাগিব। মানে 60% ওপৰত পালেহে আপুনি চাৰ্টিফিকেটখন পাব কৰ্চটোত। হয় লাষ্টৰ হয় যিটো ফাইনেল এছেচমেন্ট, মানে 3 মাহৰ পিছত যিটো এছেচমেন্ট যে অপেন হ'ব বুলি কৈছো, সেইটো 10টা MCQ কুৱেশ্যন আহিব। সেইটো আপুনি পাৰিবই, যিহেতু আপোনালোকে অলৰেডি বহুত তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে অৰ্হতা লৈছে, আপোনালোকে কৰিয়ে আছে। গতিকে 10টা কুৱেশ্যন আপোনালোকে পাৰিব, মই জানো। আপোনালোকৰ একো অসুবিধা নহয়। তাৰমানে চাপ'জ আমি 60% নাপালো, যিটো মানে নিৰ্ধাৰিত, তাৰমানে যেতিয়ালৈকে নাপাওঁ আমি সেই পৰীক্ষাটো ৰিপিট দি থাকিব পাৰিম। মই এবাৰ আমাৰ PI মেমক এবাৰ সুধি লওঁ। पूजा मैम आप हो क्या यहाँ पे? यस यस मैं हूँ। हाँ, तो अगर कोई सर मैम को एक बार में 60% मार्क्स नहीं मिला, तो वो रिपीट कर सकता है हाँ क्या हाँ ये? हाँ, रिपीट कर सकते हैं, दोबारा से उसका रीट्राई कोई करें। लिमिट है, उसका कोई लिमिट नहीं, है देयर या? इज नो देयर इज नो लिमिट। ओके, थैंक यू। আপোনালোকে এইটো মানে যিমান বাৰ আপোনালোকৰ 60% নহয়, আপুনি ৰিপিট কৰি থাকিব পাৰিব, কাৰণ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে এইটো যিহেতু এটা ন্যূনতম ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে। তো 60% পালেহে মানে আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটখন আহিব, আৰু তেতিয়া আমাৰ ফালৰ পৰা মানে আপোনালোকৰ যিটো CRR নাম্বাৰৰ কাৰণে RCI দিয়া হ'ব মানে। গতিকে আপোনালোকে 10টা কুৱেশ্যনত 60% এবাৰ যেতিয়া ধৰক কেনেবাকে কাৰোবাৰ বেয়া হয়, আপোনালোকে আইডিয়া পাই যাব, নেক্সট বাৰ ভাল হৈ যাব নিশ্চয়। কাৰণ তাৰ আগত 17টা মডিউলৰ আপোনালোক বহুত সংখ্যক অলৰেডি কৰিছে মই জনাত। গতিকে একো অসুবিধা নাপায়। বাইদেউ, হয়। মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো, তাৰমানে অকল MCQ কুৱেশ্যন খিনিতে মাৰ্কছ থাকিব, বাকী যে এইখিনি যে ক'লে কেছ ষ্টাডি বনোৱাৰ পৰা ধৰি গোটেই চিডিউলখিনি যে কৰা, সেইখিনিত কোনো মাৰ্কছ নাথাকে নেকি? নাই, কেছ ষ্টাডিটোত আপোনাৰ সেইটো পৰ্যবেক্ষণ কৰা হ'ব। সেইটো পৰ্যবেক্ষণ কৰি পেলাই সেইটোৰ ওপৰতো থাকিব, কিন্তু আপুনি এপত গৈ পেলাই আপোনাৰ যিটো 10টা কুৱেশ্যন আহিব যে 3 মাহৰ পিছত, সেইটো চাৰ্টিফিকেটত মানে আপোনাৰ সহায় হ'ব। তাৰ লগতে কেছ ষ্টাডিটোৰো আপোনাৰ ৰিভিউ কৰা হ'ব। অলৰেডি মেমে যেনেকে কৈছিল যে আপোনাৰ কেছ ষ্টাডিটোত আপুনি PDF এটাত মানে গোটেই ষ্টুডেণ্টৰ ডিটেইলছখিনি, তাৰপিছত আপোনাৰ 2 MBৰ মানে ডিটেইলছখিনি বনাই অকণমান আপোনাৰ কেছ ষ্টাডিত কি পইণ্ট পালে, সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে ৰিভিউ কৰিব। তো আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে মানে 60% পাব লাগিব। আৰু বাইদেউ, লেংগুৱেজৰ কথাটো মানে যিকোনো লেংগুৱেজত কৰিব পৰা হ'বনে? লেংগুৱেজ আপোনাৰ 8টা লেংগুৱেজ থাকিব: অসমীয়া, বেংগলী, হিন্দী, পাঞ্জাবী, তাৰপিছত আপোনাৰ ইংলিছ,
তো আপোনাৰ যেনেকে যি সুবিধা আপুনি লেংগুৱেজটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব, যিকোনো সময়ত চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। আপুনি ভাবিছে এতিয়া মই অকমান সময় ইংৰাজীত লওঁ, বেংগলীত লওঁ, তো লেংগুৱেজৰ একো অসুবিধা নাপায় আপুনি। নিজৰ মতে আপুনি লেংগুৱেজ তাতে হোমত গৈ পেলাই লেংগুৱেজ চিলেক্ট কৰা অপশ্যন আহিব, আপুনি কৰি ল'ব হয় পাৰিব। হয় বাইদেউ, ধন্যবাদ বাইদেউ। হয়, থেংক ইউ ছ' মাচ মেম। হয়, আৰু কাৰোবাৰ কিবা আছিল নে? নহলে আজি যি আলোচনা চক্ৰ আছিলে আমাৰ অলৰেডি হেৰি শেষ হৈছে। আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে, নহলে আপোনালোকে প্লিজ এবাৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব, তেতিয়া মানে ডাইৰেক্ট আমাৰ লগত আপোনালোকে কথাও পাতিব পাৰিব কিবা অসুবিধা হলে, আৰু আমাৰ ফোন নাম্বাৰ বিলাকো পাই যাব তাতে আপোনালোকে। ইয়াতে লিংকত আমি দি দিয়া আছে হোৱাটছএপ লিংকটো, যদি কোনোবা ইন কেছ জইন নাই কাইণ্ডলি জইন কৰি ল'ব, হোৱাটছএপ লিংকটো দিয়া আছে। তেতিয়া আপোনালোকে আমাক কিবা থাকিলে এবাৰ ফোনো কৰি ল'ব পাৰিব বা মেছেজো দিব পাৰিব ডাইৰেক্টলি, আৰু তাত হেল্পলাইন নাম্বাৰো দি দিম আমি আপোনালোকক। অলৰেডি গ্ৰুপতো দিছে এতিয়া মিটিং লিংকত নাম্বাৰ, হেল্পলাইন নাম্বাৰো, তাতো আপোনালোকে জনাব পাৰে। আৰু আমি যিহেতু ডিপিঅ ছাৰ বাইদেউসকলৰ লগত টাচত থাকিমেই, কিবা অসুবিধা হলে তেওঁলোকৰ পৰাও আমি জানিব পাৰিম। হয় মেম, কওকচোন। কেটেগৰী হিচাপে তেনেকুৱা একো নাথাকে, মানে যিহেতু কোৱা হৈছে অলৰেডি স্কুলতে পঢ়ি থকা ল'ৰা ছোৱালী হ'ব বুলি কোনো কথা নাই, আপুনি বাহিৰৰ ষ্টুডেণ্টকো ল'ব পাৰে। খালি সেই 21 ডিচেবিলিটিৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ পৰিলেই হ'ল, আৰু আপুনি কিবা ডাউট কৰিছে বা সহায়ৰ কিবা প্ৰয়োজন হৈছে আপোনাৰ ফালৰ পৰা, তো তেনেকুৱা এজন ল'ৰা ছোৱালী আপুনি ল'লেই হ'ল। তেনেকুৱা কেটেগৰী হিচাপে একো নাই। আৰু কাৰোবাৰ কিবা আছিল নেকি? তো আজি আমি আলোচনা চক্ৰখন মই আশা কৰিছো আপোনালোকে সকলোৱে নিজৰ যিখিনি ডাউট আছে ক্লিয়াৰ হৈছে, আৰু কিবা থাকিলে আমি পাছলে লগ পাই থাকিম, কথা পাতি থাকিম। মই ভাবিছো যে আজি ইমানতে আমি শেষ কৰো আমাৰ আলোচনা চক্ৰখন। তো মই সকলো ডিপিঅ ছাৰ মেম আৰু লগতে মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ যিসকল ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন আছে আপোনালোক সকলোকে, আমাৰ অৰবিন্দ ছচাইটিৰ পূজা মেম, ৰোহিত বৰা ছাৰ, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো। আৰু ইয়াকে কৈ পেলাই আজি আমাৰ যিখন আলোচনা চক্ৰ আছে আমি সামৰণি পেলাইছো। থেংক ইউ ছ' মাচ আপোনালোক সকলোকে ওৱান্স এগেইন। थैंक यू पूजा मैम। तो हम लोग एंड कर सकते हैं मैम। थैंक यू सो मच मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच एजुकेटर एंड प्रोफेशनल्स। आप लोग थ्रू आउट द सेशन जुड़े रहे थैंक एंड यू मैम। इतना इंटरेक्टिवली आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच रोहित जी एंड लीना मैम फॉर योर सपोर्ट। एंड अब आप सेशन को लीव करके अपने डेली रूटीन में कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you.